Hello everyone, good afternoon. How are you? Okay, a very warm welcome. So my name is Himanshi Juneja and today I am going to introduce you to a topic of class 9 chemistry. The name of my topic is matter in our surroundings. All right. So let's start. Okay. First of all, students, look at your classroom. What do you observe? Chair, desk. Okay. So tell me, do all these things have mass? Yes. Okay. Do they occupy space also? Yes. So apart from all these things, something else is also present in the classroom which you cannot see. What is that? Anyone? Any idea? Okay. So many students are answering. Air. Okay. So what do you think? Is air a matter or not? Okay. I will clear your doubt. Okay, so first of all, whatever present around us is called matter. So let us see a few more examples of matter. Anything around us, food, any object, they all are matter. Okay, so let's start. What is matter? Now we will define matter. Anything that has mass and occupies space. For example, I have this mobile. So when I keep it on the desk, it occupies some space and it has mass also. We can perceive through our senses, that is known as mass. Now let's prove that air has mass. How am I going to prove this? See, you all must have seen football. How many of you play football? Okay, many. All right. So who is your favorite football player? Ronaldo. Okay, some are saying Messi also. That's great. So see, let's get back to our topic. So this is the football which is only mass 1 kg. Now if I blow air in it, the mass of the football will increase to 1.5 kg. So what are the changes? इसमें क्या changes हुए? फुटबॉल में जब एयर कम थी या नहीं थी तो सिर्फ 1 kg मास था, एयर ब्लो करते ही उसका मास बढ़ गया. तो मास कैसे बढ़ा? एयर की प्रेजेंस में. सो दिस प्रूव्स दैट football air has mass and it occupies space. Okay, so air is also a matter. अब mass क्या होता है? What is mass? See, it is a physical quantity which express the amount of matter in a body. For example, मैं राइस वे करती हूँ तो कितना राइस कितना कैसे वे करती हूँ पैन पे, तो ये इसका मास है, कितने केजी है वो. लाइक अ गर्ल वेइंग हरसेल्फ ऑन अ वेइंग मशीन. तो वेट को क्या हम लिखते हैं? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सी, so now what is volume? Can anybody tell me? Very good. It is related to liquids. Okay. So I will tell you, amount of gas and oil present in any container, that is known as volume. For example, जो भी लिक्विड क्वांटिटी है वो कितनी है, किसी भी कंटेनर में कितनी है, वही लिक्विड वही उसकी वॉल्यूम होती है. फॉर एग्जाम्पल हम है ना मिल्क लेते हैं, तो मिल्क हम किसी कंटेनर में लेते हैं, वही मिल्क अगर हम किसी जार में टर्न करेंगे तो उसकी वॉल्यूम सेम ही रहेगी, अमाउंट ऑफ मिल्क सेम ही रहेगा, बस उसका कंटेनर चेंज हो गया. तो जितना वो लिक्विड जो है एरिया ले रहा है मतलब किसी कंटेनर में, वो उसका वॉल्यूम है. So the exact definition is space inside the container that is occupied by matter is called volume. Okay. Now a question for everyone. Is everything around us matter? So vote for it. Yes or no? How many of you are saying yes? Okay, there are many who are in favor of yes. Okay. And how many of you say no? A few are there. ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई आंसर नहीं दे रहा, yes or no किसी में भी नहीं है. Okay. So I'll tell you. See, now I will show you three things: heat, light, and sound. What do you think? Are these matter? Yes or no? Yes, no, maybe. Okay, these all are forms of energy. These are not matter. These are forms of energy. So matter is made up of tiny particles, and the tiny particles are known as atoms or molecules. Matter जो होता है बहुत छोटे छोटे particles का बना होता है. Tiny means very small. Now I will prove this. Okay.
लेट मी प्रूव दिस. सो मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स. इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे. तो ये एक्सपेरिमेंट, दो who are in lab they can do this experiment. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक 100 ml वाटर लूंगी एक बीकर में. उसके बाद मैं उसमें फ्यू क्रिस्टल्स डालूंगी पोटेशियम परमांगनेट की. व्हाट विल बी द रिजल्ट? क्या होगा पोटेशियम परमांगनेट की क्रिस्टल्स डालते हुए? एनीवन कैन यू टेल मी? यस, इट विल बी ऑफ पर्पल कलर. उसमें पर्पल कलर आ जाएगा. नेक्स्ट में क्या करूंगी, सेम ऐसा ही बीकर लूंगी लेकिन उसमें 90 ml वाटर लूंगी. ओके. तो मैंने क्या किया, इसमें से 10 ml इस फर्स्ट बीकर में से निकाला सॉल्यूशन. उसे एक टेस्ट ट्यूब में लिया. ये टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने लिया और उसे 90 ml वाटर में डाल दिया. इस सोल्यूशन को, इस 10 ml सोल्यूशन को फर्स्ट बीकर में से लेके मैं इसे सेकेंड बीकर में टर्न कर रही हूँ. सेकेंड बीकर में क्या होगा, उसमें भी कलर लाइट पर्पल हो जाएगा. ओके. तो सेम यही फिनोमिना मैं आगे भी 2 बार करूंगी. ये मैंने फर्स्ट टाइम किया, सेकेंड टाइम में एक और बीकर लूंगी, उसमें 90 ml वाटर डालूंगी. देन आई विल टेक 10 ml ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द सेकेंड बीकर एंड पुट इट इन द थर्ड बीकर. सेकेंड बीकर में से लेके उसे थर्ड बीकर में डालूंगी. फिर नेक्स्ट एक और बीकर लूंगी, उसमें भी 90 ml वाटर लूंगी और थर्ड बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन का लेके मैं उसमें टर्न करूंगी. Now, what is the observation? See, the color from first beaker to fourth beaker is becoming lighter and lighter. What is the reason? Can anybody tell me? हम हर बीकर में 90 ml वाटर ही ले रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट बीकर का सॉल्यूशन है उसमें से 10 ml लिया, वही 10 ml फिर दूसरे में से 10 ml लेके थर्ड में डाला. तो इसमें कलर लाइट होता जा रहा है. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द रीजन? सी, बिकॉज जो टाइनी क्रिस्टल है पोटेशियम परमांगनेट के, वो इतने सारे पार्टिकल्स के बने, इतने मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के बने हैं कि वो किसी भी जरा सी पानी के वॉल्यूम को भी कलरफुल कर सकते हैं. ओके. सो आई कैन प्रूव दिस थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट दैट पोटेशियम परमांगनेट, it is an element and it is made up of so many particles that impart color on dilution. अब डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन मीन्स जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है. लाइक फॉर एग्जांपल, हम केमिस्ट्री लैब में बहुत बार सुना होगा मैम को कहते हुए कि डाइल्यूट HCl यूज करो, डाइल्यूट एसिड्स यूज करो डिफरेंट. तो डाइल्यूट मीन्स उसमें एसिड का कंटेंट कम होगा और वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा. ओके. दैट्स so this indicate that particles of matter are very very small beyond our imagination. Understood everyone? Okay. Now next property of matter is the particle of matter have spaces between them. Okay. Do you all agree with this thing कि particles of matter में space होते हैं? Okay. इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे. तो फिर से हम एक बीकर लेंगे, या बीकर ही क्यों, या कुछ भी ले सकते हो आप, बट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सब उसके फ्रेंड्स हैं. ओके. So we will take 100 ml of water in a beaker. अब इसमें ये देखो जितना पानी का लेवल है, मैंने उसको एक रेड लाइन से मार्क कर दिया बीकर पे. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे. ये मेजर करके मैंने 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी. अब ये देखो शुगर नीचे दिख रही है बीकर में. थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगी. इट विल डिसॉल्व, वी विल डिसॉल्व दिस शुगर बाय स्टिरिंग इट विद अ ग्लास रॉड. स्टिर मीन्स इसको हिलाना. इसको मैं कंटिन्यूअसली स्टिर करूंगी एक ग्लास रॉड से. ओके. उसके बाद क्या हुआ, ये देखो शुगर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, लेकिन पानी का लेवल उतना ही रहा है स्टूडेंट्स. ये देखो जो रेड लाइन मैंने बीकर पे मार्क की थी वो अभी भी उतना ही है. पानी का लेवल नहीं बढ़ा, उसमें शुगर डिसॉल्व हो गई बट वो पानी का लेवल उतना ही है. इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं बढ़ा पानी का लेवल? मैं तो इतनी सारी शुगर भी डाली थी उसमें 50 ग्राम. क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थे उन्होंने उसमें जगह बना ली अपनी. पानी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली. सो दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. अंडरस्टूड? ओके. ये सब सबने घर पे भी किया होगा, न्यू पानी बनाया होगा तो उसमें शुगर डाली होगी. कभी पानी का कंटेंट ऐसे बढ़ जाता है क्या? नहीं ना. बस दैट इज द सेम थिंग वी आर प्रूविंग.
So science is nothing, just facts. Okay, we have to believe in logic and we have to give reason about everything. Okay. All right. So this indicates that particles of matter have space between them. Now, next property of matter is particle of matters are continuously moving. पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते. अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगी? स्टेशनरी मीन्स एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो मूव ही करते रहते हैं. ऑल राइट, सो लेट्स सी हाउ आई एम प्रूव दिस. सी, अब ये मैंने एक बीकर लिया और इसमें मैंने पोटेशियम परमांगनेट पार्टिकल्स डाले, पोटेशियम परमांगनेट का जरा सा सॉल्यूशन डाला. ये वाटर में अपने आप मिक्स होता जा रहा है, मुझे इसको स्टिर करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे इसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी. ये अपने आप मूव कर रहा है और उसका कलर चेंज कर रहा है. दिस मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर विदाउट एनी स्टिरिंग, बिना स्टिर किए, बिना हिलाए, इसकी मूवमेंट जो होती है यूनिफॉर्मली पूरे वाटर में ये डिसॉल्व हो रहा है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन. ओके, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन without stirring, without doing anything, that is known as diffusion. इसको हम diffusion कहते हैं. Okay, so this indicates that particles of matter are continuously moving. Now see, one more question for everyone. सब लोग मंदिर जाते होंगे. Okay, so how many of you believe in God? Many. Okay, क्या रीजन है? अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, इसलिए बिलीव करते हो गॉड पे. ओके, और कोई रीजन? No, okay. So why we are not able to smell an unlit incense stick from a distance? Incense stick means अगरबत्ती. जब हम एक अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरी जगह कैसे आ जाती है? कोई मुझे बता सकता है? उसकी खुशबू हर जगह कैसे फैल जाती है पूरे घर में? ओके. और अगर हम एक इंसेंस स्टिक जो है लिट नहीं करें तो क्या होगा? क्या उसमें उसकी खुशबू आएगी? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो पूरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, इसीलिए हमें उसकी खुशबू हर जगह आती है. ओके. अब एक बात बताओ, जब भी हम एक रूम में, मंदिर में अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, उसको लिट करते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में चली जाती है. कैसे? क्योंकि पार्टिकल ऑफ गैसेस प्रोड्यूस, दे मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन. रैपिडली मीन्स वेरी फास्ट, एंड दे मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल्स इन एयर. तो उसकी खुशबू इसलिए चारों तरफ फैल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, सी, वी कम टू नो अबाउट व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट गोइंग देयर. किचन में कुछ भी अच्छा बन रहा हो, हमें दूर से ही पता पड़ जाता है. कैसे पता पड़ जाता है? उसकी अरोमा से. अरोमा मीन्स प्लेजेंट स्मेल. तो बिकॉज वो जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो मिक्स हो जाते हैं, जो एयर के पार्टिकल्स है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत दूर तक स्मेल आ जाती है कि क्या बन रहा है. प्लेजेंट स्मेल आ जाती है. उस प्लेजेंट स्मेल को हम बोलते हैं अरोमा. और वो इसलिए आती है क्योंकि पार्टिकल ऑफ फूड जो है वो पार्टिकल ऑफ एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. तो ये प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हर समय मूव करते रहते हैं. ओके. क्योंकि जब हम ये इंसेंस स्टिक लिट करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना मतलब फ्रेग्रेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपराइज हो जाती है, वो सराउंडिंग में बहुत जल्दी फैल जाती है. ओके. नाउ, yeah, same question what you are about to ask. What is kinetic energy? Can anybody tell me what is kinetic energy? Okay. So the kinetic energy is nothing. It is the energy which possesses due to its motion. ये एनर्जी होती है एक मैटर की जो उसके मोशन में होने की वजह से होती है. ओके. तो इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, anybody till now, does anybody has any doubt? No? Okay. So now let us see something. See, ये एक गैस जार है जिसमें रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर है. अब मैं एक और जार लेती हूँ और इसको मैं इन्वर्ट करती हूँ, इसके ऊपर रखती हूँ, दूसरे वाले जार के ऊपर. तो क्या हुआ? ये जो रेड ब्राउन वेपर है ये ऊपर वाले जार में भी आ गई. आ गई. अपर जार जो कलरलेस था वो भी रेड ब्राउन कलर का हो गया. क्या रीजन है इसके पीछे?
दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बस एक जार के ऊपर दूसरा जार रखा, तो जो नीचे वाले जार की ब्रोमीन वेपर थी वो ऊपर अपने आप ट्रांसफर हो गई। ओके, ऊपर भी फैल गई। तो ये डिफ्यूजन होता है जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल की वजह से हो रहा है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सो एयर जो है लोअर जार में भी चली जाती है, बट वी कैन नॉट सी इट। Now, what is diffusion? It is based on the motion of its particles. अब diffusion जो होता है वो सबसे फास्ट होता है गैसेस में और स्लो होता है सॉलिड्स में। क्यों सॉलिड्स में स्लो होता है? कैन एनीबडी टेल मी? सॉलिड में ये इसलिए स्लो होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके। और ये कैसे बढ़ता है रेट ऑफ डिफ्यूजन? टेम्परेचर बढ़ाने से। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अच्छा तुमने देखा होगा, हम एक है ना किसी भी लाइक वेसल में ले लो, किसी भी बर्तन में हम पानी डाल के शुगर डालते हैं और उसको धीरे धीरे स्टिर करते हैं तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती है। लेकिन अगर हम उसे बर्नर पे गैस पे बर्न करेंगे तो वो बहुत जल्दी उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। हीट करने से, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने से वो और जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है। सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन कोई पूछे तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन मीन्स हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें स्टिर भी नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएंगे। ओके। लाइक द एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था, अगर मम्मा अंदर कुछ कुक कर रही है, पिज्जा कुक कर रही है, तो मैं बाहर तक उसकी स्मेल आ जाएगी, अरोमा आ जाएगी। ओके, द प्लेजेंट स्मेल। सो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। जो फूड पार्टिकल्स थे वो एयर के साथ मिक्स हो गए, एयर के पार्टिकल्स के साथ। अब ये देखो, लाइक एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? ओके, द एनिमल्स दैट लिव इन सी और वाटर। अब वो लोग कैसे ब्रीथ करते हैं? ये देखो क्या होता है कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड का ज्यादा होता है सॉलिड से, क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं। लिक्विड स्टेट में इतने टाइटली पैक नहीं होते, वो इस फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके बीच बहुत स्पेस भी होता है। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में ज्यादा होता है एज कॉम्पेयर टू सॉलिड। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होती है वो जो है उसमें डिजोल्व हो जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो पानी में ब्रीथ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से ही ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पार्टिकल, पानी के अंदर ऑक्सीजन इजिली डिजोल्व हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं। ओके, तो ये रीजन है एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ कर सकते हैं पानी में। ओके। अब जैसे मैं इंक स्प्रेड करूं वाटर में तो क्या होता है? इंक पूरी तरीके से डिस्प्रेड हो जाती है। ओके। स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इन इट। परफ्यूम की स्मेल डिफ्यूजन की वजह से हर जगह फैल जाती है। अब कोई जरा सा परफ्यूम लगा के आता है, हमें पता पड़ जाता है जैसे ही वो हमारे आसपास आता है। किसी ने थोड़ा ज्यादा लगा लिया, देन ऑल्सो वी केम टू नो, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम occupy the space, they mix with the particles of air. ओके। और डिफ्यूजन जो है सॉलिड में बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ओके। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसको मैं कैसे प्रूव करूं? कोई किसी के और के पास कोई तरीका है इसे प्रूव करने का, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर? ओके, तो सबसे सिंपल एग्जांपल दे रही हूं मैं। चौक, आयरन नेल और ये आइस। ओके, मैंने ये थ्री थिंग्स ली हैं। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, I want take you have taken all these three pieces. Okay, मैंने chalk भी ले ली, एक iron nail ले ली, iron nail means कील. Okay, third is the ice cube. इन सबको मैं हैमर से हिट करूंगी, कौन सी चीज इजिली ब्रेक हो जाएगी? गिव मी योर आंसर, विच वन विल इजिली ब्रेक? ओके, चौक तो पहले ही टूट जाएगी। यस। आयरन नेल, आयरन नेल टूटेगी? पता नहीं। ओके, आइस क्यूब? यस। सी विच इज इजियर टू ब्रेक, विच रिक्वायर मोर फोर्स? सबसे इजिली ब्रेक होगी, ये तो राइट आंसर है कि वो होगा, सबसे इजिली तो ब्रेक होगी चौक। ओके, और किसको ज्यादा फोर्स लगेगा ब्रेक होने में?
या आयरन नेल को ज्यादा लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि है ना, आइस ऑफ क्यूब जो है उनको भी फोर्स ज्यादा लगेगा, और आयरन में तो आयरन नेल पे कितना भी जोर लगा दो, कितनी भी तेज उसे हैमर से मारो, वो इजिली नहीं टूटेगा। यस। तो ये क्या होता है? ये फोर्स की वजह से होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है चौक के पार्टिकल में बहुत वीक है। ओके। और आइस के पार्टिकल में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगेगा उसे तोड़ने में। और आयरन नेल में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन वो इजिली नहीं टूटेंगे। देखो, जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। तीन फ्रेंड्स हैं। वो 10 साल से फ्रेंडशिप है उनकी। ओके। और वैसे ही दो फ्रेंड्स और बने, जिनकी सिर्फ 2 दिन से फ्रेंडशिप है। किसकी फ्रेंडशिप इजिली टूट जाएगी? डेफिनेटली जो 2 दिन से फ्रेंड्स हैं। जो 10 साल से फ्रेंड्स हैं उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो इजिली उनकी वो अलग नहीं होंगे, इजिली वो सेपरेट नहीं होंगे। और जो दो फ्रेंड्स जो न्यू फ्रेंड्स बने हैं, वो इजिली लड़ने लग जाएंगे, इजिली फाइट करने लग जाएंगे। तो उनके लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा उनको उनको ब्रेक करने के लिए, उनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ओके। तो जैसे सॉलिड में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी वीक है, तो इसलिए मुझे भी ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। So force of attraction is maximum in the particle of solid matter and minimum in the particle of gaseous matter. Now characteristics of particles of matter. Particles of matter बहुत small होते हैं, very very small. They have spaces between them, and particles of matter are constantly moving. As temperature rises, particles also move faster. Particles of matter attract each other. So this was the properties of matter. So everybody understood? Yes. So do you have any doubts? Anybody? No doubt. Okay. So we'll continue after this in our second session. All right. So if you like my session, if you like my video, then please like it, share it, and subscribe it. And please share my next video also. Thank you. Have a nice day. Yeah, bye.